Hello, my dear students of class 10th. Welcome to Imavate Academy. Today, in this video, I will be starting with the chapter Sound Materials, your notebook, your pen, your everything, so that you can take down the notes. Everything that I would write in the class, you should take a record of it, note them down. All right. So let's start the chapter. The very first thing that you should know are these two formulas. Okay, these two formulae are very, very important for your chapter. Okay, now V is equal to F lambda. What do we mean by V? V stands for speed of the wave. In our case, which is the wave we are talking about? We are talking about sound wave. So speed of sound. V is speed of sound. F is the frequency of the sound. What is lambda? Lambda is the wavelength of the sound wave. Okay, any wave will have a wavelength. So sound is a wave, so it will have a wavelength. So remember, you have to learn this formula. V is equal to F lambda. V is equal to F lambda. You need to tell this so many times that it should, record in your brain very nicely. Another formula is F is equal to 1 upon T. Okay, this is not a new formula. You have seen it in class 9, in your class 8 also. F is frequency. Okay. And what is this capital T? T is time period. We know that frequency and time period are reciprocal of each other. तो ये दोनों formulas याद हो गया. इसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे and a lot of numericals come from these formulas. Okay, these are very important formulas. We have to do this. Okay, now before we do the numericals on this, we will see some more topics. Okay, the thing that we have to now know is reflection of sound. Okay, just like light reflects, sound also reflects. Okay, कोई surface है, sound उस पर गिरा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होता है फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे लाइट में होता था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर भी होता है. अगर कोई साउंड वेव आया, हिट किया रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट को और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. जस्ट लाइक अ लाइट वेव, साउंड वेव ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिफ्लेक्शन की. कब रिफ्लेक्शन होगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंडीशन, राइट डाउन. कंडीशन फॉर reflection of sound. Reflection of sound. Okay, what is the only condition that is required which must be fulfilled for reflection of sound? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया तो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उस रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो काफी बड़ा होना चाहिए. किसके रेस्पेक्ट में? वेवलेंथ ऑफ द साउंड के रेस्पेक्ट में. साउंड का जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए. किसका साइज? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का. तो सी व्हाट इज रिटन. द ओनली रिक्वायरमेंट for the reflection of sound wave is that the size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave. इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. उल्टा नहीं लिखना. The wavelength of the sound must be bigger than the size of reflecting surface. नहीं, the size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of sound. कई बार ये MCQ के तरीके से पूछ देता है, and you know what, they try to confuse you. Okay, which of the following conditions is required for reflection of sound? Option 1, the size of the reflecting surface must be equal to the wavelength of the sound wave. The size of the reflecting surface must be smaller than the wavelength of the sound wave. The size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave, and the size of the reflecting surface may be smaller or equal to the wavelength of the sound wave. चार ऑप्शंस दिया हुआ है. किस ऑप्शन को टिक करोगे? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ. साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर या लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव. ओके, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट. आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो भी मैं बता रहा हूं. ओके, नोट इट डाउन. नाउ echo is a phenomenon that happens because of reflection of sound. और echo से हम हर इंसान परिचित है. It is not a new thing. We all have experienced echo in our life in some or the other time. है ना? हम लोग सब जानते हैं. किसी बड़े से पहाड़ के सामने तुम गए हो और यहाँ पर तुम चिल्ला रहे हो कोई भी चीज, हेलो, तो that sound will go and hit the actually what happens? Why do you hear an echo? What is the reason? जो तुमने बोला वो साउंड जाके हिल को या जो भी पहाड़ है, जो भी चीज है, it could be a waterfall in front of you, उससे वो टकराया एंड वहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे कानों पर आया. वही साउंड वेव. सो you will hear
अनदर हेलो, तुमने हेलो बोला, दिस इज द ओरिजिनल साउंड, और एक रिफ्लेक्ट होके आया, द रिफ्लेक्टेड साउंड, तुम्हें 2 बार सुनाई देगा हेलो, एंड यू फील दैट यस दिस इज द एको. सो व्हाट इज एको? इट इज द साउंड हर्ड, जो साउंड तुम्हें सुनाई दिया कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल. ओके, वो कितनी मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. ओके, तो काफी दूर पर एक ऑब्स्टेकल है, मैंने कुछ बोला, साउंड एमिट किया, वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आया मेरे पास. एंड व्हाट कुड बी दैट दोज ऑब्स्टेकल्स? such as a cliff, a hillside, wall of a building, edge of a forest, etc. After the original sound has ceased is called echo. देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक वर्ड है आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड. मैं इसी पार्ट को अंडरलाइन करता हूं. ओके, द साउंड व्हिच इज हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट्स ट्रू, बट दैट रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच टू माय ईयर आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड. सीज्ड मतलब died, after the original sound has died. मतलब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों अगर एक साथ ही मेरे कानों पर आए, ओरिजिनल साउंड मैंने बोला और रिफ्लेक्ट होकर भी वो तुरंत मेरे कानों पर आ गया, देन बोथ ऑफ द साउंड्स विल ओवरलैप and my brain will not be able to distinguish between the reflected sound and the original sound. Are you getting my point? जैसे तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम अपने रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे रूम का वॉल है, there's a wall of your room. You speak something, do you hear an echo? No, you don't. तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो वॉल तुम्हारे काफी सामने है. तुमने जो बोला, सपोज तुमने हाय बोला, दैट हाय went and got reflected in very less amount of time. तो जब तक ओरिजिनल साउंड सीज हुआ ही नहीं था, रिफ्लेक्टेड साउंड एकदम तुरंत, इट इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बैक, एंड द रिफ्लेक्टेड हाई एंड द ओरिजिनल हाई बोथ ओवरलैप्ड. The original high and the reflected high, they overlap because the obstacle was not at a sufficient distance, so it got reflected too fast. So before the original sound ceased, the reflected sound came to my ears, and hence even if reflection happened, echo was not there. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा तो एको होगा ही. एको होने के लिए सिर्फ रिफ्लेक्शन काफी नहीं है, ये जरूरी है कि जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो सफिशिएंट डिस्टेंस पर हो, सो दैट only after the original sound has ceased the reflected sound comes to my ears. So that original sound cease हो गया, उसके बाद एक दूसरा साउंड सुनाई दिया, तब मैं दोनों साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा. अच्छा, दो साउंड हुआ, तभी ना मुझे एको का फील होगा. So that is why it is important to write that after the original sound has ceased. Now in our ear, the sensation of the original sound persists for, persists even after 0.1 seconds. मतलब ओरिजिनल साउंड के एमिट होने के 0.1 सेकेंड तक, ओरिजिनल साउंड जैसे एमिट होना बंद हुआ, उसके भी 0.1 सेकेंड के बाद तक वो ओरिजिनल साउंड का सेंसेशन मेरे ईयर में रहता है. ये 0.1 सेकेंड का टाइम के बाद ही रिफ्लेक्टेड साउंड आना चाहिए. तो the time interval after which the reflected sound should come is 0.1 second. The speed of the sound is 330 meter per second, in some cases 320 meter per second, 332 भी लिया जा सकता है, मतलब मोटा मोटी 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर. मैं एयर की बात कर रहा हूं. ओके, so what should be the distance of the obstacle from the person so that he can hear the echo? अब निकाल सकते हैं हम. यहां पर ये इंसान है, ये यहां कुछ बोल रहा है, ये मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस होगा तो एको नहीं हो रहा है, तो कितना कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए कि एको सुनाई दे, वो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं. तो साउंड जो इसने एमिट किया, वो साउंड पहले तो ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, एंड अगेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, it will come back to his ears, means फिर से d. तो d plus d, the total distance traveled by the sound would be, जाने के लिए d distance, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर इसके कानों में आएगा d distance, यानी 2d distance. The total distance traveled by the sound will be 2d. Okay, we have to find out what is d, but the total distance traveled by the sound will be 2d. And what is the time? Time is 0.1 seconds. What is the speed? Speed of the sound is 330 meter per second. Okay, now we all know there's a formula, right? What is the formula? Speed is equal to distance upon time, या फिर distance is equal to speed into time. तो ये distance है 2d, total distance है, speed into time, हम ये formula लिख सकते हैं मैथ से.
और इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, d इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू। ये टू को मैं इधर भेज देता हूं, तुम्हें ये फॉर्मूला यहां दिख रहा है, d इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू। तो कभी भी मुझे अगर डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग ऑब्स्टकल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकालना है, यानी ये d का वैल्यू निकालना है, d मींस द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑब्स्टकल। ओके, तो फॉर्मूला है वीटी अपॉन टू। अब समझ में आया ये टू कहां से आया? टू बिकॉज एक्चुअली जो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो 2d था। ओके, एक बार जाने का d फिर वापस आने का d, तो वो 2 को मैंने यहां पर नीचे भेज दिया, तो ये vt अपॉन 2 हो गया। सो आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑब्स्टकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, तो अभी हम निकालेंगे कि ये मिनिमम d कितना होना चाहिए सो दैट द एको शुड बी हर्ड। तो यहां पर d इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू की जगह पुट करो, v इज 330, t इज 0.1 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने से हमारा मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टेकल का निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा तुम्हारा आएगा 16.5 मीटर्स, जिसे तुम्हारे कंसाइज में राउंड अप करके 17 मीटर्स लिखा गया है। ओके, कई बुक्स में 16.5, 17 भी कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है। तो मोटा मोटी इतना तो मिनिमम डिस्टेंस होना ही चाहिए ताकि मुझे एको सुनाई दे। वो एयर की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज दिस वैल्यू हैज कम ओनली व्हेन वी हैव टेकन द स्पीड ऑफ साउंड एज 330 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस 330 मीटर पर सेकेंड इज इन एयर। हालांकि जब हम वाटर में हमें ये डी निकालना पड़ेगा तो फिर उसका एक दूसरा वैल्यू आएगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, वाटर का जो स्पीड है, वाटर में जो साउंड का स्पीड है, दैट यू विल पुट ओवर हियर एंड यू विल फाइंड द वैल्यू of d in water, the minimum distance required. एयर के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो याद रखना, 16.5 meters से 17 meters. Okay, this distance. Now there's a term reverberation. What's this? याद रखना, रिपीटेड रिफ्लेक्शन के वजह से एक फिनोमिनन होता है, उसे हम बोलते हैं reverberation. This we all have experienced whenever we are in a big hall. सपोज मैं स्कूल के ऑडिटोरियम में हूं, बड़ा सा ऑडिटोरियम है। ओके, तुम यहां पर खड़े हो, द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम यू इज नॉट, से इट इज नॉट 17 मीटर्स और मोर। मान लो कि ये 10 मीटर्स का ही डिस्टेंस है, और तुम यहाँ ऊपर से भी तुम मान लेते हैं कि इट इज अबाउट 12 मीटर्स और मोर देन दैट, से 15 मीटर्स, बट नॉट 17 मीटर्स। ओके, इधर भी तुम्हारा लेस देन 17 है, मान लेते हैं 10 मीटर्स ही है। तो तुम देख रहे हो किसी भी सरफेस से 17 मीटर्स का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम बोलते हो कोई वर्ड, तुम्हें फील होता है कि एको जैसा लग रहा है। कुछ भी बोलोगे हेलो, तो यहां पर बड़े से हॉल में यू विल फील दैट यू कैन फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एको गोइंग ऑन। तो एको कैसे हो सकता है? हाउ कैन एको हैपन? अभी अभी तुमने पढ़ा कि मिनिमम 17 मीटर्स होना चाहिए, हालांकि यहां पर तो ना तो ऊपर से सरफेस 17 मीटर्स की दूरी पर है, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, 17 से कम है, 17 या 17 से ज्यादा होना चाहिए। How is this possible? This is not echo. This phenomenon is known as reverberation. It is because of multiple reflection. ये कैसे होता है देखो, इसका अभी समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये साउंड इधर टकराया, टकराने से इधर फिर टकराया, यहां से फिर इधर हो सकता है रिफ्लेक्ट किया, फिर इधर से वही रिफ्लेक्ट किया, एंड ओरिजिनल साउंड के सीज होने के बाद इतना टाइम लगा उसको रिफ्लेक्ट होकर, उसके बाद तुम्हारे कानों पर वो साउंड आया आफ्टर सफरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जो साउंड तुमने हाई बोला वो पहले पॉइंट ए पर हिट किया, वहां से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट बी पर हिट किया, वहां से पॉइंट सी पर, वहां से पॉइंट डी पर, और डी के बाद फिर से तुम्हारे कानों में आया, तुम्हें एक दूसरा हाई सुनाई देगा। तो ऑल्दो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल इज नॉट 17 or more, 17 meters or more, but the sound took a lot of time to reach to your ears. It did not reach immediately fast because of multiple reflections. Okay, जब हॉल काफी बड़ा हो तो ऐसा होता है, एंड दिस कैन बी इजीली एक्सपीरियंस्ड इन टूम्स लाइक ताजमहल, सिकंदरा एटसेट्रा। सो यहाँ का इसका डेफिनेशन, रिवर्बरेशन का डेफिनेशन क्या है देख लो। इट इज बिकॉज ऑफ repeated reflections at the reflecting surface, okay, where the sound gets prolonged, and this effect is known as reverberation, which can be experienced in tombs like Taj Mahal, Sikandara, etc. Clear hai? Now moving to
कंडीशंस फॉर हियरिंग एन एको, अभी अभी हमने कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज शुड बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। सो वो तो जरूरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन का वो कंडीशन है और एको भी तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, तो दैट कंडीशन शुड बी अ कंडीशन फॉर एको आल्सो। So you see that point is written in the second point. See, this is the first point, this is the second point, and this is the third point. So see, the second point says the size of the reflector, reflector means reflecting surface, must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave. यही पॉइंट हमने अभी भी पढ़ा था कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन में। तो कंडीशन फॉर एको के लिए भी ये पॉइंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि एको भी रिफ्लेक्शन ही है। Okay, now air में कितना minimum distance होना चाहिए between the source of the sound and the reflector? We have just derived it. It is about 16.5 meters to 17 meters. The minimum distance between the source of the sound and the reflector in air must be 17 meters. हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टर इतना भी दूर नहीं होनी चाहिए कि वो साउंड एनर्जी ही लूज हो जाए। ओके, कहने की बात यह है कि 17 मीटर्स कम से कम दूरी होनी चाहिए। मतलब 17 मीटर्स दूर हो रिफ्लेक्टर, उससे ज्यादा दूर भी हो सकता है, 20 मीटर्स, 25 मीटर। लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द एयर इज सफिशिएंटली इंटेंस टू बी ऑडिबल। जैसे यहां पर तुम खड़े हो और यहां पर 20 मीटर्स की दूरी पर एक हिल है, तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि मिनिमम 17 मीटर्स होनी चाहिए, तो 20 मीटर्स पे तो एको होना चाहिए। तुम अगर जोर से बोलोगे, एकदम जोर से चिल्लाओ, गो कोरोना गो, ओके, बड़ी जोर से, तो डेफिनेटली द साउंड विल टेक sufficient amount of time and it will reach to your ears after the suitable timing, means after the original sound has ceased, and you will be able to hear the echo, no doubt. लेकिन यही साउंड को तुमने बहुत धीरे बोला, एकदम विस्पर की तरह, गो कोरोना गो, इतना धीरे बोला, अब तुम्हें एको सुनाई देगा? नहीं देगा, बिकॉज इवन इफ द डिस्टेंस इज सफिशिएंटली लार्ज बट द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वाज नॉट स्ट्रांग, तो वो साउंड यही थोड़ा सा ट्रैवल करके, थोड़ा सा ट्रैवल किया और उसकी एनर्जी लूज हो गई, तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक। या फिर रिफ्लेक्ट अगर हुआ भी तो आते वक्त उसकी एनर्जी पूरी डाउन, वो पूरी तरह से पूरे एनर्जी लेकर तुम्हारे कानों पर पहुंचा ही नहीं, तब भी एको सुनाई नहीं देगा। तो ये भी जरूरी है कि सिर्फ डिस्टेंस मैटर नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द एयर इज सफिशिएंटली इंटेंस टू बी ऑडिबल, सुनाई देना चाहिए। ओके, नाउ यूज ऑफ एकोज, इससे काफी क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी है, यूजेस ऑफ एकोज। आर यू टेकिंग नोट, टेकिंग डाउन दीज थिंग्स? ये सब पूछता है। ओके, कंडीशंस फॉर एको क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस इनसे रहते हैं, तो याद रखना चाहिए। यूजर्स ऑफ एकोज, एको का यूज कहां होता है? एको का यूज बहुत जगह है। टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर साउंड रेंजिंग एंड एको डेप्थ साउंडिंग, साउंड रेंजिंग एंड एको डेप्थ साउंडिंग। एंड इसमें हम कौन से साउंड का यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। कई बार ये पूछता है नेम द साउंड वेव, या फिर नेम द वेव विच इज यूज्ड इन एको डेप्थ साउंडिंग, बहुत ज्यादा पूछता है, नेम द वेव दैट इज यूज्ड इन एको डेप्थ साउंडिंग। अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, इंफ्रा नहीं यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक याद करो किसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं? इंफ्रासोनिक हम बोलते हैं दो साउंड वेव्स विच पोजेस फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, एंड अल्ट्रासोनिक हम बोलते हैं दो साउंड वेव्स विच पोजेस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। ओके, सो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, वही हम यहाँ यूज करते हैं एको डेप्थ साउंडिंग में। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज आर यूज्ड, क्यों यूज करते हैं ये भी रीजंस पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाई अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन एको डेप्थ साउंडिंग, क्या उनके प्रॉपर्टीज है जो उनको इतना खास बनाता है। ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट दे कैन ट्रैवल अनडेविएटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, काफी सीधा, बिना डेविएशन के, एकदम ऐसे जा रहा है तो सीधा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं दूसरे जगह चला गया, ऐसी बात नहीं है, दिस डजंट हैपन। तो अल्ट्रासाउंड की डायरेक्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब डायरेक्टिविटी मींस एकदम स्ट्रेट जाता है, अनडेविएटेड जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम, ऐसा नहीं कि ऐसे
फैल गया बहुत ज्यादा साउंड, एक हमने एमिट किया साउंड वेव, और वो साउंड वेव काफी बड़ा उसकी बीम हो गई, ऐसी बात नहीं है। बीम मीन्स, नैरो बीम मीन्स इट विल कन्फाइन इटसेल्फ लाइक दिस इन अ नैरो बीम, ओके, इट विल नॉट स्प्रेड आउट, दे आर नॉट इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम। तो जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है, वो मीडियम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता का मतलब उसकी एनर्जी को बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। सो साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो एनर्जी होती है, दे आर नॉट, दैट एनर्जी इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काफी दूर तक अनडेविएटेड ट्रैवल कर सकता है, right? So these three properties make ultrasonic waves very special. These are very important points, take a note of it. तो क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि एको डेप्थ साउंडिंग के लिए कौन सा वेव यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। लाइट वेव में एक अल्ट्रा वायोलेट है, उसके साथ कंफ्यूज मत करना, अल्ट्रा वायोलेट लाइट इज अ डिफरेंट थिंग, अल्ट्रासोनिक इज साउंड वेव, तो अल्ट्रासोनिक यूज होता है। अल्ट्रासोनिक क्यों यूज होता है, क्या खास बात है? दीज 3 पॉइंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट। डॉल्फिन्स यूज करते हैं कैसे, एंड ट्रॉलर मैन कैसे यूज करते हैं? ट्रॉलर मैन मींस फिशरमैन। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वेश्चन था हाउ डज अ ट्रॉलर मैन कैच फिश इन सी वाटर। ये एक्चुअल ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आईसीएसई क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्रॉलर मैन कैच फिश इन सी वाटर। तो यहां पर पहले हम डॉल्फिन का देख लेते हैं। Dolphins detect their enemy and obstacle by emitting the ultrasonic wave and hearing their echo. They use ultrasonic waves for hunting their prey. तो ठीक है, डॉल्फिन्स भी वही काम करते हैं जो यहां पर हम फिशरमैन के केस में पढ़ेंगे। डॉल्फिन क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है। वो कहीं पे अगर ऑब्स्टेकल है, उससे हिट करके उसके पास आया तो उसे समझ में आ जाता है ओके सामने कोई ऑब्स्टेकल है, एंड वो उसे ये भी अंदाजा लग जाता है कि वो कितनी दूरी पर है। Okay, so this is the way dolphins will detect their enemy and if there is any obstacle in front of it or not. Now, how does a fisherman, yani trawler man, catch fish? Okay, so a fisherman or trawler man sends a pulse of ultrasonic waves फ्रॉम अ सोर्स। वो सोर्स क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, यानी वहां से जो साउंड निकलता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, यानी वो अल्ट्रासाउंड होता है। सो दे विल बी सेंट, a pulse of it is sent into the sea, and that device will receive the waves reflected from the shoal of fish in a detector. अच्छा, वो फिर उसे रिसीव करता है और वहां पर अंदर में कैलकुलेशन हो जाता है कि कितने टाइम बाद वो रिफ्लेक्टेड साउंड उसने रिसीव किया, तो उस टाइम से वो अंदाजा लगा लेता है कि कितने डिस्टेंस पर वो फिश का शोल है। शोल मींस अ ग्रुप ऑफ फिश। The total time t of the to and fro journey of the wave is recorded. The distance d of the fish is then calculated by using the formula d is equal to vt upon 2. अभी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि d कैसे निकालेंगे, vt upon 2, मैंने अभी भी बताया था, ये फॉर्मूला याद तो कर लिए हो, d is equal to vt upon 2. Okay, d means the distance of the source, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स, किसके साथ, किससे डिस्टेंस, ऑब्स्टेकल से डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्स्टेकल है उस सोर्स ऑफ साउंड से, वो है डी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? vt अपॉन 2 से। v मींस द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर के अंदर वो साउंड डाला गया अल्ट्रासाउंड, विच इज 1400 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम वो डी निकाल सकते हैं। फिशरमैन को दिख जाएगा उसके डिवाइस पर कि इतनी डिस्टेंस पर, वहां पर एक डिजिटल स्क्रीन रहता है, वहां पर उसे दिख जाएगा कि ओके इतनी डिस्टेंस पर हमारा फिश है, तो वो उस हिसाब से वो जाल बिछाएगा एंड कैच कर लेगा फिश को, राइट? ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। काफी ज्यादा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तुम्हें सोनार से क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, व्हाट इज दिस वर्ड, यू नो, सोनार, व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अच्छा, कई बार तो एमसीक्यूज में ये पूछते हैं द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज ऑप्शन 1। अरे बहुत ही मिलते जुलते कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस रहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रिसर्च हो सकता है एक ऑप्शन हो जो गलत है, फिर हो सकता है साउंड नेविगेटर एंड रेंजिंग, तो भी गलत है, नेविगेटर नहीं नेविगेशन। तो इस तरह से मिलते जुलते ऑप्शंस जो तुम्हें काफी कंफ्यूज कर सकते हैं वो रह सकते हैं। तुम्हें याद रखना है करेक्ट
is sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. अब यहां पर ये फिगर जो है, फिगर नंबर को इग्नोर करो. दिस फिगर शोज द प्रिंसिपल ऑफ सोनार इन विच, देखो यहां पर एक शिप है, फिगर को देखो, देयर इज अ शिप एंड फ्रॉम द शिप there are two antennas, one is transmitter antenna, another is receiver antenna. तुम्हें दिख रहा है, एक्चुअली these are very close to each other. यहाँ पर इतना डिस्टेंस नहीं होता रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच, लेकिन फिगर में तुम्हें ताकि क्लियरली दिखे इसलिए यहाँ पे दो डॉट से शो किया गया और डिस्टेंस भी है. तो ट्रांसमीटर ने क्या किया कि यहाँ पर एक पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एमिट किया. नीचे कोई ऑब्स्टेकल है, वहां से हो सकता है ऑब्स्टेकल हो या हो सकता है डेप्थ ऑफ द बेस ऑफ द ओशन हो, वहां से ये टकराकर ये ऊपर की तरफ आएगा एंड रिसीवर उसे रिसीव करेगा. एंड इस टाइम के हेल्प से जितने टाइम लगा उसको जाने और आने में, उस टी की मदद से हम डी निकाल सकते हैं. डी मींस दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द शिप एंड द ऑब्स्टेकल. कौन सा फॉर्मूला यूज करके? वीटी अपॉन टू. वही फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू वीटी अपॉन टू. ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. This figure shows the principle of a sonar in which ultrasonic waves are sent in all directions from the ship. These waves are received after reflection from an obstacle such as the enemy submarine, iceberg, sunken ship, etc. कुछ नहीं है, एकदम easy है. To find the distance of obstacle from the ship, the time interval t between the instant when the waves या pulse are sent and the instant when the waves are received, वो जो टाइम इंटरवल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इज मेजर्ड. द डिस्टेंस d of the obstacle from the source is then calculated by d is equal to vt upon 2, where v is the speed of ultrasonic waves in water. The depth of the sea can also be found by using this method, and that process is known as echo depth sounding. अगर हमें डेप्थ निकालना है कि कितना है, तो उससे इससे भी निकाल सकते हैं, इसी टेक्निक से हम निकाल सकते हैं, है ना. तो डेप्थ इज, क्योंकि वो बेस ऑफ द ओशन से टकराकर वो वापस आएगा, तो दैट इज known as echo depth sounding. All right. Uses of echoes in medical field. Medical field में भी इसका यूज रहता है echo का, जो कई बार पूछा है एग्जाम में. There is a word ultrasonography. ये कई बार सुने होंगे, आजकल बहुत कॉमन है. Okay, in medical field, echo method of ultrasonic waves are used for imaging the human organs such as liver, gallbladder, uterus, womb, etc. This is called ultrasonography. Okay, when a woman is pregnant, okay, to see how is the condition of the child, the condition of the fetus inside her womb, doctors would do ultrasonography. Computer से दिखता है the organs of the child are growing properly or not. ओके, तो आजकल तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है, इसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है. सिमिलरली एकोकार्डियोग्राफी, अगर वही चीज हमारा हार्ट का किया जाए, वही इमेजिंग हार्ट का किया जाए, तो स्पेशल वर्ड है एकोकार्डियोग्राफी. कार्डियो स्टैंड्स is related to heart. Okay, so echocardiography is used to obtain the image of the human heart. कुछ नहीं है, सिंपल. Now coming to the numerical, यहां से मजा आएगा क्योंकि अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं. ओके, द डायग्राम बिलो शोज ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तुम्हें दो डायग्राम दिख रहा है, ए एंड बी. थोड़ा बड़ा कर दूं, अब दिख रहा होगा क्लियरली. सो ए इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. यू सी वाई इज ऑन दी वाई एक्स. वाई मीन्स व्हाट इज वाई? वाई स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. एक्स भी बोल सकते हो, लेकिन ये यहां पे वाई सिंबल को यूज किया गया. सो अलोंग दी वाई एक्सिस this displacement is plotted, and along the x-axis time is plotted. So this is basically displacement time graph, and displacement distance graph is this b. देखो यहाँ पे displacement है, and x means this is also distance. X is distance, y is displacement. तो b is displacement distance graph. दोनों का अलग अलग रिजल्ट होता है, समझ रहे हो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस में टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे डिस्टेंस है. ओके, नाउ किसका, कौन से वेव का लिखा हुआ है? ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. तो क्या गिवन है? इस वेव का वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी मींस v गिवन है. आई हैव टोल्ड यू द सिंबल v which I have already discussed right at the beginning, the first स्लाइड में ही हमने पढ़ा था. v क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड या वेलोसिटी ऑफ द साउंड. वो v यहां दिया हुआ है चिल्ड्रेन.
V of the sound is given in SI unit, 20 meter per second. In each case, use the graph to calculate the frequency and wavelength of the wave. Very simple. तो हमें सबसे पहले ग्राफ को लेते हैं ए, ग्राफ ए का ग्राफ ए की हम बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ ए, लुक एट द ग्राफ ए। इस केस में हम अगर देखें ध्यान से, तो दिस इज वन वेव, यहां से एक क्रेस्ट और एक ट्रो। आर यू गेटिंग व्हाट इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो? मैं इधर बता रहा हूं। अगर ये हमने बनाया, दिस इज वन क्रेस्ट, एंड फिर से हमने बनाया वन ट्रो, तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो मेक्स अप वन वेव। सिर्फ अगर हम एक क्रेस्ट बनाते हैं, दिस इज हाफ अ वेव। नाउ दिस इज, उसका ट्रो भी बना दिया, दिस इज वन वेव। फिर से हमने एक क्रेस्ट बनाया, तो दिस इज 1.5 वेव्स। ओके, तो एक कंप्लीट वेव होने के लिए एक क्रेस्ट और एक ट्रो होना चाहिए। अगर हम ऐसे बनाते हैं, एक ट्रो और एक क्रेस्ट, तो दिस इज ऑल्सो वन वेव। यानी एक क्रेस्ट एक वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रो, या फिर एक ट्रो एक क्रेस्ट, ये रहना चाहिए, दैट इज वन वेव। तो यहां पर इस ग्राफ में देखो, ग्राफ ए में वन वेव होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तुम्हें टाइम एक्स एक्सिस में दिख रहा है। तो ये यहां से ये वन वेव है, वन क्रेस्ट एंड देन वन ट्रो। एट पॉइंट बी, जिसको मैंने बी से अभी डॉट किया है, उस पॉइंट पर एक वेव कंप्लीट हो रहा है। एंड कितना टाइम लगा एक वेव कंप्लीट होने में? 0.10 सेकेंड्स। तुम्हें क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव is 0.10 seconds. अच्छा, डू यू नो द टाइम टेकन टू वन वेव को ही टाइम पीरियड बोलते हैं? पता है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैं यहां पर कॉमा देके इसको कैपिटल टी लिख सकता हूं, बिकॉज कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, सब क्लासेस में पढ़े हो, जूनियर क्लासेस में। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन या वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। तो बेसिकली 0.10 सेकेंड्स टाइम पीरियड है। तुम्हें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, पढ़े हो? फ्रीक्वेंसी एफ इज 1/t। फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़े हो, आज भी बताया हूं, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट स्लाइड में ही बताया हूं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी कर रहा हूं, ये पूरे आईसीएसई पैटर्न का क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इस टाइप का बोर्ड्स में आता है, बहुत बार पूछता है। ओके, तो ये अब निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1/0.10, जो कि तुमको सॉल्व करना होगा। तो 100/10 हो गया, यानी 10 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है। आ गया फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकालोगे? फर्स्ट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला, तुम्हें क्या निकालना है? लैम्डा, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू v/f। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग लिख लो, यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज v/f। अब नेक्स्ट क्या करना है? कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है। v का वैल्यू तुम्हें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया होगा। f का वैल्यू अभी अभी तुमने निकाल लिया 10, तो आ गया 2 मीटर्स। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर्स। तो सारी चीज अगर हम एसआई यूनिट में ले रहे हैं, तो हमारा वेवलेंथ भी एसआई में आएगा। अगर 20 को हमने 20 मीटर पर सेकेंड का यूनिट लिया है, यानी एसआई यूनिट है। 10 भी 10 हर्ज लिया है, एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, तो लैम्डा भी अपनी एसआई यूनिट में आएगा, मीटर्स में आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। आ गया ना हमें? फर्स्ट ग्राफ का फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, वेवलेंथ भी निकाल लिया। अब सेकेंड ग्राफ में चलते हैं। सेकेंड ग्राफ में देखो, एक वेव का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज वेव? वन वेव, द सेम थिंग, द सेम वे यू हैव टू लुक एट, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो, यानी दिस पॉइंट इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो जो पॉइंट ए तुम्हें दिख रहा है वो है 2 लिखा हुआ है, बट दिस इज 2 सेकेंड्स। नो, दिस इज नॉट टाइम एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस। एक्स है, एक्स एक्सिस में हमने डिस्टेंस प्लॉट किया है। तो ये जो 2 है, ये 2 मीटर्स है, यूनिट भी लिख दिया है इन मीटर्स। देखो x इन मीटर्स लिखा हुआ है, यानी ये 2 मीटर्स वेव लेंथ है। दिस इज वन वेव, एंड इस वेव का लेंथ कितना लेंथ है? मीटर्स में है। तो दैट मींस दिस इज वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो लेंथ ऑफ वन वेव, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, इट इज
2 मीटर्स, तो एक बार में हमारा वेवलेंथ आ गया ग्राफ से देखकर। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, है ना, इसी फॉर्मूला से f v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर f को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। v का वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का वैल्यू 2 मीटर्स है, तो 10 हर्ट्ज हो गया। ओके, 10 हर्ट्ज हो गया। यूनिट ऐसा यूनिट में ही आएगा बिकॉज हमने v को भी ऐसा यूनिट में लिया, लैम्डा को भी ऐसा यूनिट में लिया, तो f भी SI यूनिट में आएगा। तो हमारा आंसर आ गया। कितना इजी है चिल्ड्रेन, मजा आ रहा है? आर यू नोटिंग इट डाउन? ओके, अभी हम नेक्स्ट इधर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी अ बॉय हियर्स एन एको ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज का उसे एको सुनाई देता है, फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, जो हिल उससे काफी दूरी पर है। द स्पीड ऑफ द एयर, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय? काफी इजी क्वेश्चन है। एक लड़का है, उसको अपनी आवाज का एको सुनाई देता है, ये हिल है, यहां पर वो खड़ा है। ओके, नाउ कितने स्पीड से वो साउंड गया? v का वैल्यू दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड। हमें d निकालना है कि ये बंदा कितनी दूरी पर है। अभी अभी ये d निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है कि d इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। तो v दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड, टाइम लिया हुआ है 1 सेकेंड, कितने टाइम के बाद उसे एको सुनाई दिया, दैट इज t, 1 सेकेंड, 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2, 350 into 1 divided by 2 will give you 175 meters, कुछ भी नहीं है। तो ये बंदा बेसिकली 175 मीटर्स की दूरी पर खड़ा है इस हिल से। सिंपल। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आने का चांस इस बार तुम लोगों का है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अभी जो क्वेश्चन तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, क्यों दिख, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन। एक लड़का है, एक इंसान है, एक वर्टिकल क्लिफ के सामने खड़ा है और ढिशकियां गोली चलाया। ही हियर्स द एको आफ्टर 3 सेकेंड्स, और इस गन का जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसका एको उसे 3 सेकेंड बाद सुनाई दिया। ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ, अब वो क्लिफ से और क्लोजर चला गया, क्लिफ के पास चला गया। कितनी डिस्टेंस क्लोज गया? 82.5 मीटर्स। ही फायर्स अगेन, फिर से फायर किया, एंड दिस टाइम ही हियर्स द एको आफ्टर 2.5 सेकंड्स। मतलब पहले तो 3 सेकंड्स में सुन रहा था, अभी क्लोज चला गया तो वो साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आया, इसलिए कम समय लगा एको होने में। 2.5 सेकंड्स के बाद ही उसने एको सुन लिया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन? ये इनिशियल पोजीशन एंड द क्लिफ के बीच कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ साउंड। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस बार तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का जो क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन, जो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। A man standing in front of a cliff fires a gun and hears its echo after 3 seconds. If the speed of sound in air is 336 meters per second, calculate the distance of the person from the cliff after moving a certain distance from the cliff. देखो, इस तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें ये इंसान क्लिफ से थोड़ी डिस्टेंस दूर चला जाता है, और जो क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा, जो अभी ब्लू से लिखा हुआ क्वेश्चन था, उसमें था कि वो इंसान क्लिफ से क्लोज चला गया। तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, हालांकि डिफरेंट है, लेकिन समझ रहे हो ना कि किस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आने का चांस है कि एक क्लिफ है, कोई इंसान है जो पहले जब क्लिफ से इतने डिस्टेंस पर था उसने गन फायर किया या क्लैप किया, तो उसे एको इतने समय बाद सुनाई दिया, फिर वो क्लिफ से कुछ डिस्टेंस दूर चला गया या क्लोज आ गया, फिर उसको एको कितने टाइम सुनाई दिया। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं काफी सारे हैं कंसाइज में, और आज हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस ब्लू वाले क्वेश्चन को यहां करता हूं, फिर वो क्वेश्चन भी हम करेंगे वन बाय वन। लेट मी take the screen a bit up. Okay, now let me read the question. Okay. A man standing in front of a vertical cliff, थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ हाँ, अब ठीक है, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, राइट? ओके,
A man standing in front of a vertical cliff fires a gun. यहां पर vertical cliff है एंड यहां पर वो मैन है, इसने फायर किया गन. And at which distance he is standing from the cliff, we don't know. That we have to rather calculate. यही तो हमें कैलकुलेट करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट या फिर फाइंड, क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, इस क्लिफ से इस मैन का डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन. मतलब अभी जहां मैन खड़ा है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, बाद में तो वो क्लोजर चला जाएगा, लेकिन इनिशियली दिस इज हिज पोजीशन. तो ये डी हमें निकालना है. ओके, नाउ दिस टाइम जब अभी वो अपने इनिशियल पोजीशन पर है और उसने गन फायर किया तो उसे एको जो सुनाई दिया वो 3 सेकेंड्स बाद सुनाई दिया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल केस की बात कर रहा हूं. इनिशियल केस मींस बिफोर ही वेंट क्लोजर टू द क्लिफ, व्हाट इज द डिस्टेंस. वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू vt upon 2. Okay, this d is equal to vt upon 2, isn't it? So what is this d? D is d. What is v? We don't know. We have to find the speed of the sound. And what is the time taken? It is given 3 seconds by 2. तो इस फॉर्मूला से क्या हम ये v को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2d upon 3? यस, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2d हो गया एंड 3 इधर जाके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो v इज इक्वल टू 2d अपॉन 3. लेट दिस बी इक्वेशन 1. नाउ व्हाट इज द फाइनल केस या न्यू केस, मतलब ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ. अब देखो ये इंसान यहां चला गया, क्लोज आ गया क्लिफ के. you have to read the question carefully, that did he go farther away from the cliff or did he come closer to the cliff. यहां लिखा हुआ है ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर्स. यानी क्या ये डिस्टेंस 82.5 मीटर्स है? नहीं, समझो इंग्लिश को पकड़ो. ही वेंट क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस 82.5 मीटर्स है. पहले जितने डिस्टेंस पर वो खड़ा था वहां से वो 82.5 मीटर्स और क्लोज चला गया, मतलब this distance is 82.5. So what is his distance from the cliff? It is d minus 82.5. This you have to understand. d minus 82.5. इस केस में हम अब फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, d is equal to vt upon 2. लेकिन d के जगह हम d पुट नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हमारा डिस्टेंस ऑब्स्टिकल से d नहीं है. इस बार इस इंसान का डिस्टेंस ऑब्स्टिकल से d माइनस 82.5 है, इसलिए यहां पर हमने d माइन इन प्लेस ऑफ d in this new case I have put d minus 82.5 is equal to vt upon 2. v हमें नहीं पता निकालना है और वो चेंज भी नहीं होगा, स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो क्लोज जाएगा तो साउंड का तो जो स्पीड है वही रहेगा. तो v ही यूज किया. टाइम कितना लगा इस बार, देखो लिखा हुआ है एंड हियर्स द एको आफ्टर 2.5 सेकंड्स. इस बार 2.5 सेकंड्स लगा एंड डिवाइड बाय 2. तो हमने यहां जो फॉर्मूला यूज किया वो वही फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू vt अपॉन 2. कोई नया फॉर्मूला तो यूज नहीं किया. d के जगह हमने d माइनस 82.5 रख दिया. समझ में आया क्यों? क्योंकि अभी डिस्टेंस d माइनस 82.5 है. ओके, विल मल्टीप्लाई दिस 2 ओवर हियर. तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 2d माइनस 825 को 2 से मल्टीप्लाई करो. ओके 165, यहां डेसिमल है तो यहां डेसिमल आ जाएगा. 165 इज इक्वल टू v इंटू 2.5. ओके, नाउ v को तुम लिख सकते हो, v को सब्जेक्ट बनाओ 2d माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2.5. दिस इज इक्वेशन 2. तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ v आ जाएगा क्योंकि हम इस v को और इस v को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव द सेम LHS. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 या फिर इक्वेटिंग 1 एंड 2. बहुत सिंपल है, 2d by 3 is equal to 2d minus 165 upon 2.5. अब भाई इसको तुम्हें सॉल्व करना है. 2.5 को इधर मल्टीप्लाई करो 2d के साथ, तो 2.5 into 2 is 5. तो 5d is equal to 3 to the 6d minus 5 3s are 15, 6 is 80, 19 हो गया यहाँ पर 1, तो 3 1 3 495 हो गया ना. यस, तो तुम्हारा आ जाएगा d is equal to
कितना 495 because 6d minus 5d is 1d and this is 495 meters. तो ये आ गया d का वैल्यू, मतलब यही d था ना जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, इनिशियल मैन जहां खड़ा था वहां से क्लिफ का डिस्टेंस, वो हमें निकालना है. सो वी हैव फाउंड आउट पार्ट ए वी हैव गॉट. लिखेंगे देयरफॉर ये एक आंसर है, द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द initial position of man is equal to 495 meters. अब हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है. किसी भी इक्वेशन में पुट करो d का वैल्यू, इक्वेशन 1 में भी तुम पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, तुम्हें v आ जाएगा. बहुत सिंपल है. तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट करता हूं. सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 495 meters in equation 1, तो v is equal to 2d upon 3 है इक्वेशन 1 में, d के जगह 495 upon 3. इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आ जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड आ गया. दिस इज बी, आंसर ऑफ बी. वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था ना, बहुत इजी. देख लिया. तो बोर्ड्स में इस तरह से पूछता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में, वेरी सिमिलर टू दिस. What is the next question? Next question says a person standing between two vertical cliffs. इस बार एक cliff नहीं है. Here now in this question we have two vertical cliffs and 640 meters away from the nearest cliff. Now, okay, he is standing between two vertical cliffs, यानी दो vertical cliffs है. Okay, and यहां से क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि एक क्लिफ उससे नियरर है, दूसरा क्लिफ उससे दूर पर, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ही स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 640 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ. दैट मींस वन ऑफ द क्लिफ इज नियरर, अनदर क्लिफ इज फार्दर. यू हैव टू पिक अप. ही इज नॉट स्टैंडिंग एट मिड पॉइंट बिटवीन द क्लिफ्स. तो जो नियरेस्ट क्लिफ है, यानी हम क्लिफ बी को मान सकते हैं, तुम क्लिफ ए को भी मान सकते हो नियरर क्लिफ. तुम इसी इंसान को यहां से उठाकर थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लो, इधर. इसको मैं डिलीट कर देता हूं. In this case, your figure will be like this, and nearest cliff is cliff A, and here the distance from nearest cliff is 640 meters, and you can take this distance as take the entire distance as d, and then you can say that this distance from the cliff B and the man is d minus 640. This you can say, or else you can draw it in this way. तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आएगा. तुम जैसे भी सॉल्व करो, तुम उसे B से क्लोजर बनाओ और पूरे दोनों क्लिफ्स के बीच का डिस्टेंस को D रख लो. क्यों मैं D रख रहा हूं? इसे इजी होगा क्योंकि हमें निकालना है. यू सी द पार्ट B, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स. हमें ये दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसलिए मैं उसको D रख दिया. ओके, तो क्लोजर क्लिफ से उसकी डिस्टेंस कितनी है? You see, it is said the person is standing at a distance 640 meters away from the nearest cliff. तो बिल्कुल अब ये भी जो फिगर बनाया था वैसा ही है. तो A से उसका डिस्टेंस हो गया D minus 640 meters. कुछ नहीं है, सिंपल है, हो गया ये फिगर. Now he hears the first echo after 4 seconds. उसने क्या किया? प्रोड्यूस साउंड. उसने साउंड प्रोड्यूस किया, एंड जो फर्स्ट एको उसको सुनाई दिया वो 4 सेकंड बाद सुनाई दिया. तो फर्स्ट जो एको सुनाई देगा उसको, ऑब्वियसली फर्स्ट जो एको वो दूर वाले क्लिफ से टकराकर जो साउंड आया, रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आया, उसका एको तो नहीं हो सकता, बिकॉज जो क्लिफ उससे नियरर है, द फर्स्ट एको विल बी हर्ड फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट क्लिफ. तो फर्स्ट एको इज हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ बी, द नियरर क्लिफ. ओके, एंड द सेकेंड एको 3 seconds later. 3 seconds later means 4 सेकेंड्स के बाद के 3 सेकेंड्स, मींस एक्चुअली 4 + 3 7 सेकेंड्स बाद. तो जो उसको यहां पे उसने साउंड एमिट किया, वो साउंड आफ्टर 4 seconds he hears an echo, and after 7 seconds he hears another echo. आफ्टर 7 seconds मतलब ओरिजिनल साउंड के एमिट होने के 7 seconds बाद उसे सेकेंड एको सुनाई दिया, और फर्स्ट एको के 3 सेकेंड बाद, फर्स्ट एको होने के 3 सेकेंड बाद, और ओरिजिनल साउंड के 7 seconds बाद. 7 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 4 + 3 7 seconds.
यहाँ पे ये वर्ड लेटर है, इससे समझना है। लेटर मीन्स आफ्टर द फर्स्ट एको 3 सेकेंड्स, आफ्टर द फर्स्ट एको इज ओवर, उसके बाद के 3 सेकेंड्स, मतलब ओरिजिनल साउंड से 4 + 3 7 सेकेंड्स। तो यहाँ पे वो केयरफुली हमें टाइम पुट करना है, यहाँ 3 को हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 सेकेंड्स लेटर, राइट। तो सबसे पहली केस हम बात करेंगे व्हेन द रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम नियरर क्लिफ, व्हेन द रिफ्लेक्शन is from nearer cliff, that is मेरे फिगर के अनुसार क्लिफ बी। तुम हो सकता है फिगर ए के क्लोज बनाओ, तुम लिखोगे दैट इज क्लिफ ए, ओके, नो प्रॉब्लम। उस केस में तुम्हारा ए से इस मैन का डिस्टेंस 640 मीटर्स होगा। ऑलराइट, अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 640, isn't it? क्लिफ और मैन का डिस्टेंस। v क्या है हमें वो नहीं पता, निकालना है। vt अपॉन 2, t कितना है देखो, फर्स्ट एको का 4 सेकेंड्स अपॉन 2, 2 2 4 कट गया। अब ये 2 इधर भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। तो v हमारा स्पीड ऑफ द साउंड आ गया 320 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट का आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। v मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो हमने निकाल लिया 320 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? No doubt. Now, when the reflection is from farther cliff, that is cliff A, क्लिफ ए से अब हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वीटी अपॉन 2। लेकिन क्लिफ ए से डिस्टेंस कितना है? d माइनस 640, d माइनस 640, और vt अपॉन 2, v का वैल्यू हमने निकाल लिया 320, t का वैल्यू हमें पता है 3 नहीं है 7 है, ओके, ओरिजिनल साउंड से टाइम अपॉन 2। नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा d बड़े इजीली आ जाएगा। तो पहले तो इसको काट सकते हैं, 2 1s are 2, 2 6s are 12, ओके, एंड इस तरह से आगे सॉल्व करो। जो d का वैल्यू है वो तुम्हारा कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से 16 into 7 1120, ओके, 160 into 7 1120, एंड ये प्लस उधर जाके 640 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1760 मीटर्स। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस वी हैड टू कैलकुलेट। ये हमारा पार्ट बी का आंसर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स is equal to 1760 meters. Simple. And the speed of the sound already came 320 meter per second. कुछ भी नहीं है। An MCQ, इस बार MCQs भी आ रहे हैं, देखो बहुत सिंपल है। The minimum distance between the source and the reflector in air to hear an echo is how much? Approximately 17 meters. We have already discussed it. In boards, you will not tick, so you will write the answer B. Okay, 17 meters. We have just discussed it. To detect the obstacles in their path, bats कौन से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए? वही अल्ट्रासोनिक, बैट्स बोलो चाहे डॉल्फिन्स बोलो, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, बी। ठीक है? देयर इज अ न्यूमेरिकल, a person standing between two vertical cliffs produces a sound। देखो बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का। यहाँ पर एक वर्टिकल क्लिफ है, यहाँ वर्टिकल क्लिफ है, द पर्सन इज स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, क्लोजर फ्रॉम वन ऑफ द क्लिफ्स एंड फार्दर फ्रॉम द अदर क्लिफ। नाउ 2 सक्सेसिव echoes are heard। ऑब्वियसली यहाँ उसने साउंड प्रोड्यूस करेगा, 2 echo सुनाई देगा at 4 seconds एंड at 6 seconds। देखो यहाँ पर 6 seconds लेटर नहीं लिखा हुआ है। The previous question said 6 कुछ भी क्या लिखा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में? 3 seconds later। तो लेटर का मतलब है कि फर्स्ट एको के 3 सेकंड बाद, लेकिन यहां पर लेटर नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश पकड़ना है। ये 6 सेकंड्स है, ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुआ वहां से 6 सेकंड्स, सो वी डोंट हैव टू ऐड 4 + 6 10। ये ओरिजिनल 6 सेकंड्स लेटर नहीं लिखा हुआ है, इट इज एट द 6th सेकंड। ओके, सो 2 एको सुनाई दिया। द फर्स्ट एको, दैट मींस दिस echo heard after 4 seconds is
द echo which is from the nearer cliff. यानी यहां पर हम, चलो इस बार हम इंसान को ना क्लिफ ए से क्लोजर बनाते हैं. ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने बी से क्लोजर बनाया था, इस बार ए से क्लोजर बनाते हैं. और इस डिस्टेंस को हम इस बार D1 मान लेते हैं, इसको हम D2 मान लेते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है, तुम यहां पर पिछले क्वेश्चन की तरह तुम इस एंटायर डिस्टेंस को D मान सकते हो, और इसको तुम D1 मान सकते हो, और इसको तुम D माइनस D1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू कुड हैव डन दिस. तुमने इसको यहाँ D कंप्लीटली न मानकर तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर ये इंसान खड़ा है, ये है क्लिफ ए, क्लिफ बी, दिस इज D1, दिस इज D2, एंड तुम्हें ये टोटल डिस्टेंस निकालना है D1 प्लस D2. तुम्हें लास्ट में D1 और D2 को ऐड करके आंसर बताना है. वैसे भी करोगे तो 1760 ही आएगा. ओके, तुम कोई भी सिंबल लो, करेक्ट होना चाहिए, बस किसी भी तरह से लो. तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं. हमने यहां पर इसको D1 लिया, इसको D, टोटल डिस्टेंस को D लिया, तो D माइनस D1 ये लेंगे, या फिर इस बार ऐसे लेते हैं. तुम्हें हर तरीके का मैं दिखा देता हूं कि इसको मैं D1 लेता हूं, इसको D2 लेता हूं क्लिफ B से, यानी फार्दर क्लिफ से डिस्टेंस है D2. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स हमें निकालना है, दैट इज D1 प्लस D2, ये हमें निकालना है. ओके, वेरी सिंपल. नाउ क्लिफ A इज नियरर. ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम नियरर क्लिफ. फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू VT अपॉन 2. तो डिस्टेंस कितना है D1 इंसान से क्लिफ तक का, V कितना है दिया हुआ है 320, T कितना है 4 सेकेंड्स अपॉन 2. ये तो D1 अभी निकल जाएगा, बड़ा इजी है. 2 2 4, 3 2 6, 640 मीटर्स D1 आ गया. रिफ्लेक्शन फ्रॉम फार्दर क्लिफ, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या है D2, स्पीड इंटू टाइम, टाइम इस बार 6 सेकेंड्स है, बाई 2 VT अपॉन 2, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9. इसको ऐड कर लो, यही हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स, 640 meters plus 960 meters, 1600 meters. Very, very simple. बहुत बहुत simple. This question is from your specimen paper. अब इसको करते हैं, A person standing in front of a cliff fires a gun, and hears his echo after 3 seconds. ये cliff है, क्लिफ के सामने ये बंदा खड़ा है एंड इसने गन चलाया. कितनी डिस्टेंस पर है वो नहीं पता हमें, लेट दैट डिस्टेंस बी D. इनफैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट. देखो बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ. तो ये D मान लिया कि उसने D डिस्टेंस पर खड़े होकर गन चलाया. He hears the echo after 3 seconds. The speed of the sound is 336 मीटर पर सेकेंड. तो बिल्कुल हम D निकाल सकते हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. फॉर्मूला है D इज इक्वल टू VT अपॉन 2, है ना. फॉर्मूला तो बार बार हम यूज कर रहे हैं. V इज 336 दिया हुआ है, स्पीड, टाइम इज 3 सेकेंड्स, एंड बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे, 336 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 504 मीटर्स. यानी ये कितनी दूरी पर है बंदा खड़ा क्लिफ से, 504 meters. Now, after moving a certain distance from the cliff, understand the English, it doesn't say after moving a certain distance towards the cliff. नहीं, इस बार from the cliff means he moves away from the cliff. So let the diagram be like this. This is his initial position. And now he comes here. This is his new position. And new position मान लेते हैं कि वो D dash distance move किया. So now the total distance from the cliff and the man is D plus D dash. Are you getting it? So whenever we put the value of D in the formula, in this formula, you should know that the D is actually the distance of the person from the cliff, from the obstacle. तो अभी हम वही फॉर्मूला को पुट करेंगे. अभी वो कितने डिस्टेंस पर है क्लिफ से? D plus D dash डिस्टेंस पर है. He fires a gun and this time the echo is heard
1.5 सेकेंड्स लेटर, लेटर लिखा हुआ है यानी कि पहले के टाइम के बाद 1.5 सेकेंड्स, यानी पहले कितने टाइम के बाद सुनाई दे रहा था 3 सेकेंड। जैसे लेटर लिखा हुआ होगा ना, यू हैव टू ऐड दिस विद द इनिशियल टाइम। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, याद करो 3 सेकेंड्स लेटर था तो हमने 4 + 3 7 लिया था। यहां पर भी वही काम करेंगे, लेटर है मींस 3 + 1.5 इज 4.5, तो VT/2, V तो वही है 336, टाइम क्या है 3 + 1.5 विच इज 4.5, ओके एंड 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार आ जाएगा 336 × 4.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू 756। ये हमारा आ गया D + D'। हमें निकालना क्या है, क्या हमें हिज डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ निकालना है? नहीं, पढ़ो ठीक से। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन, यानी वो कितना डिस्टेंस पीछे गया। ही वेंट D' डिस्टेंस पीछे, हमें D' का वैल्यू चाहिए, सिर्फ D' का वैल्यू चाहिए। तो D + D' निकल गया, D का वैल्यू ऑलरेडी पता है 504, तो D के जगह 504 लिखता हूं, प्लस D' = 756, तो D' = 756 माइनस 504, तो दिस विल गिव यू 2, 5 and 2, यानी 252 meters, यानी he had actually moved by a distance by कितना 252 meters, answer. With this we complete this video. See you people in the next video. Children, don't forget to subscribe and press the bell so that you don't miss the next video. God bless everyone. Take care.